Hello, good morning to everyone. Today I would like to discuss you syllabus of the chemistry in 11th class. There are total 14 units in your entire syllabus. There are 14 units, and in unit first you will study about some basic concept of chemistry. It is of 5 marks, and second unit is structure of atom. It is 6 marks. Third unit is classification of element and periodicity of properties. It is for 4 marks. Fourth unit is chemical bonding and molecular structure. It is of 5 marks. Fifth unit is state of matter, gases and liquid state. Only two state are here. It is for 4 marks. Next unit is sixth unit is thermodynamics. It is of 6 marks. Seventh is equilibrium, 6 marks. Eighth is redox reaction. It is of also 3 marks. Ninth unit is hydrogen. 10th unit is S block element. Marks is given alongside here. You can show here. Next unit is P blocks elements. Some P block elements, not all, some. Next is organic chemistry. Here you will study about some basic principle and techniques only. Next unit is 13 unit is hydrocarbon, and 14 unit is environmental chemistry. It is of 3 marks. Total is 70 marks out of 100. 70 marks include theory and 30 marks for practical. Total 70 plus 30, that is 100 marks. This is all about your syllabus. So you have to study all these syllabus in this year. Now starting, first chapter is some basic concept of chemistry. Here is given particulars of the chapters, what chapter included. It is given here in the same way here also. Next, the chapter is some basic concept of chemistry. This is your first chapter and the first unit. In this chapter you will study about understand and appreciate the role of chemistry in different sphere of life, explain the characteristics of these state of matter, classify of different substances into element, compound and mixture, define SI base unit and a list of some commonly used prefixes, use of scientific notation, and perform simple mathematical operations on the numbers. Next is differentiate between the precision and accuracy, determine the significant figure. Then after you will study convert the physical quantity from the systems of unit to another, one system of unit to another. Next, explain various law of chemical combination. Next, appreciate significance of atomic mass, average atomic mass, molecular mass, formula mass. Then after you will study mole and molar mass, and then you will learn about how mass percent is calculated of different element which make a compound. And next is to determine the empirical formula and the molecular formula of the compound with the help of given experimental data. And lastly, stoichiometric calculation are here in this chapter. Total, this is all about this chapter. Now starting from here, first of all I would like to introduce the chapter. As I am going from your book, as you know that human beings have always been very curious to know their surrounding. इंसान जो है आदिकाल से ही अपने सराउंडिंग के बारे में जानने के लिए बहुत जिज्ञासु है. दिस क्यूरियोसिटी हैज़ लेड टू collect information
through the experiment and observation. ये जो इन्फॉर्मेशन उसने प्राप्त की है इंसान ने अपने एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन, जो निरीक्षण किया है, परीक्षण किया है, उसके आधार पर किया है. इट इज़ ऑल्सो बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिसर्च एक्टिविटीज़ फॉर वेरियस पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड. रिसर्च का जो परिणाम आया उससे अपनी इंफॉर्मेशन को, अपनी नॉलेज को उसने गैदर्ड किया. द नॉलेज एंड डेटा बेस एक्वायर लाइक दिस देन सिस्टमेटाइज्ड इन अ वे दैट द मैन काइंड टेक मैक्सिमम बेनिफिट. उस नॉलेज को सिस्टमेटाइज किया, ऑर्डरली रखा, ताकि ह्यूमन बीइंग के बेनिफिशियल में वो काम आ सके, है ना. आउट दिस नॉलेज बेस इज नोन एज साइंस. आपको पता है साइंस किसे कहते हैं. साइंस में भी डिफाइंड दस systematized knowledge gained by the mankind through the observation and experimentation. This is the definition of science. Today I would like to give you definition of chemistry. Chemistry may be defined as a branch of science which deals with the study of matter. Chemistry जो है विज्ञान की शाखा है जो कि मैटर को डील करती है. इट्स कंपोजिशन, मैटर के कंपोजिशन को डील करती है. इट्स प्रॉपर्टीज़, क्या क्या प्रॉपर्टी उसमें है उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं. एंड चेंजेस विच इट अंडरगोज इन कंपोजिशन, क्या कंपोजिशन में कोई परिवर्तन आया है. एज वेल एज इन द एनर्जी ड्यूरिंग द वेरियस प्रोसेस. जैसे कि प्रोसेस, एक प्रोसेस से दूसरी प्रोसेस में कोई चीज़ जाती है या केमिकल चेंज होता है तो क्या ऊर्जा के मान में परिवर्तन आता है. ये सारी बातों का अध्ययन हम केमिस्ट्री के अंतर्गत करते हैं. केमिस्ट्री हैज़ बीन फर्दर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ब्रांचेस डिपेंडिंग अपॉन स्पेशलाइज्ड फील्ड ऑफ स्टडी. इसकी फिर अनेक शाखाएं बनाई गई हैं जिस अलग अलग शाखाओं में इसका हम अध्ययन करते हैं, अलग अलग चीज़ों का अध्ययन करते हैं. जैसे कि यहाँ पर दिया गया है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक मेन ब्रांच दी गई हैं, सारी तो नहीं दी गई हैं, थोड़ी बहुत दे रखी हैं. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, एनालिटिक केमिस्ट्री, बायो केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, है ना. थोड़ी ब्रांचेस दी हैं, लगभग 7 ब्रांचेस दे रखी हैं. दिस इनऑर्गेनिक में दिस ब्रांच डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपाउंड ऑफ ऑल अदर एलिमेंट एक्सेप्ट कार्बन. इसमें सारे के सारे एलिमेंट का अध्ययन करते हैं, किसको छोड़कर, कार्बन को छोड़कर. मतलब 115 एलिमेंट हमें प्राप्त हैं अभी तक, तो जिसमें कार्बन को छोड़कर बाकी 114 एलिमेंट का अध्ययन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत करते हैं. इट मेनली डील्स विद द स्टडी ऑफ मिनरल्स फाउंड इन द क्रस्ट ऑफ द अर्थ. अर्थ क्रस्ट में पाए जाने वाले जो डिफरेंट टाइप के मिनरल्स हैं उनके अध्ययन को हम इसमें करते हैं. दूसरा ब्रांच है बेटा केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. दिस ब्रांच डील्स विद द स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड. इसमें हम केवल और केवल कार्बन और कार्बन के कंपाउंड्स का अध्ययन करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, स्पेशली हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स. विशेष तौर पर हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर कंपाउंड का अध्ययन करते हैं और उनसे प्राप्त किए जाने वाले अन्य कंपाउंड का अध्ययन इसमें करते हैं. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समथिंग रिलेटेड टू लिविंग. ओके, बाद में डिस्कस करेंगे बाकी डिटेल से. अगला है फिजिकल केमिस्ट्री. दिस ब्रांच डील्स विद द एक्सप्लेनेशन एंड फंडामेंटल प्रिंसिपल गवर्निंग वेरियस केमिकल फिनोमिनन. इट इज़ बेसिकली कंसर्न विद द लॉज, थ्योरीज एंड ऑफ डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री. इस ब्रांच में, केमिस्ट्री की इस ब्रांच में हम जो विभिन्न वैज्ञानिकों ने जो प्रिंसिपल्स दिए हैं और उनके बारे में अध्ययन करते हैं, उन प्रिंसिपल का एक्सप्लेनेशन को समझते हैं. ये सारी चीज़ें हम इसमें करते हैं. नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री. दिस ब्रांच डील्स विद द केमिस्ट्री इन्वॉल्व इन इंडस्ट्रियल प्रोसेस. जो औद्योगिक इंडस्ट्रीज कहना चाहिए, इंडस्ट्रीज में जो विभिन्न प्रकार की प्रोसेस इन्वॉल्व होती है ना. जैसे पदार्थ बनते हैं इंडस्ट्री में, आपको पता है ना. अलग अलग प्रोडक्ट की अलग अलग इंडस्ट्री होती है, कैसे बनते हैं, क्या क्या क्राइटेरिया है उसको बनाने का, सारी बातें इसके अंतर्गत आती हैं. नेक्स्ट इज एनालिटिकल केमिस्ट्री. दिस ब्रांच डील्स विद द क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस. इसमें हम मात्रात्मक
और मात्रात्मक और गुणात्मक चीज़ों का अध्ययन करते हैं। पदार्थ की कितनी मात्रा डालकर और क्या क्वालिटी रहेगी उसकी, है ना। तो जिससे जैसे प्रोडक्ट बनाते हैं कि कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो कितनी मात्रा किस चीज़ की होनी चाहिए और उस हिसाब से उसमें क्या क्वालिटीज़ आएंगी, इस सारी बातों का एनालिसिस करते हैं और इसको हम कहते हैं एनालिटिक केमिस्ट्री। नेक्स्ट इज बायोकेमिस्ट्री। दिस ब्रांच डील्स विद द केमिकल चेंज गोइंग ऑन इन द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट एज वेल एज एनिमल। इस बायोकेमिस्ट्री, जैसा कि नेम ही सजेस्ट कर रहा है, बायो मीन्स जैव, केमिस्ट्री माने रसायन, जैव रसायन। इसमें बॉडी के अंतर्गत होने वाली जो भी केमिकल चेंज है, ह्यूमन बॉडी, ये प्लांट की भी हो सकती है, एनिमल की भी हो सकती है, जो जो चेंजेस आते हैं बॉडी के अंदर, केमिकल चेंजेस, उन सारी बातों का अध्ययन हम बायोकेमिस्ट्री में करते हैं। लास्टली हियर गिवन इज न्यूक्लियर केमिस्ट्री। दिस ब्रांच डील्स विद द स्टडी ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन सच एज न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फिजन, ट्रांसम्यूटेशन प्रोसेस एक्सेट्रा। इस ब्रांच में हम न्यूक्लियर रिएक्शन का अध्ययन करते हैं, जैसे न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियस को तोड़ना, फ्यूजन माने तोड़ना, स्प्लिट अप करना, फ्यूजन माने जोड़ना, न्यूक्लियस को जोड़ना, है ना। एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस को, हैवी न्यूक्लियस को तोड़ना फ्यूजन कहलाएगा, और लाइट न्यूक्लियसों को जोड़ना फ्यूजन कहलाएगा। और ट्रांसम्यूटेशन का अध्ययन करते हैं। ट्रांसम्यूटेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट कर दिया जाता है, इसको हम ट्रांसम्यूटेशन कहते हैं। इन एडिशन टू अवर ब्रांचेज देयर आर अनदर ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री डेवलप्ड इन रिसेंट ईयर। इसके अलावा रिसेंट ईयर में कुछ ब्रांच और इंट्रोड्यूस की गई हैं। दीज इंक्लूड फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, इसमें हम, जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, सारी मेडिसिन का अध्ययन करते हैं। मेडिसिन कैसे बनाई जाती है, क्या उसका कितनी कितनी मात्रा, क्वांटिटी किस पदार्थ की मिलाकर, और क्या उसमें क्वालिटी आएगी, ये सब मेडिसिन बनाने में, ये सब फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में अध्ययन करते हैं। फिर है जियो केमिस्ट्री। जियो जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, जियो मीन्स भूगर्भ केमिस्ट्री, है ना, अर्थ के अंदर जो मिनरल्स पाए जाते हैं उनका अध्ययन। एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री, कृषि रसायन में हम जो भी विभिन्न प्रकार के जो फर्टिलाइजर्स रिलेटेड, है ना, चीज़ें होती हैं उनका अध्ययन करते हैं। और मेडिसिनल केमिस्ट्री, मेडिसिनल केमिस्ट्री इज समथिंग रिलेटेड टू फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, इसमें दवाओं का अध्ययन किया जाता है। सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री एक्सेट्रा, सॉलिड ठोस अवस्था की केमिस्ट्री, इन सब बातों का अध्ययन करते हैं। तो उसके बाद इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, इसके लिए मैं दूसरा वीडियो बनाता हूँ, तब तक आप इतना पढ़िए, इसको नोटबुक बना लीजिए, नोटबुक में ये सारी चीज़ें लिख लेना आज के। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।